Hello everyone, today we are going to continue with our exercise 2.2 of chapter polynomial with question number 3, right? So let's see what our question number 3 is saying to us. Question number 3, verify whether the following are zeros of the polynomial. Indicate against them. देखो, अब हमारे पास जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उन्होंने x की वैल्यू हमारे पास दे रखी है. उन्होंने कहा चेक करो कि क्या वो इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है. तो हम कैसे चेक कर सकते हैं कि वो उस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है या रूट है. कैसे चेक कर सकते हैं कि अगर उसको पुट करने के बाद हमारे पास आंसर अगर ज़ीरो आए तो वो हमारे पास क्या होगी, ज़ीरो होगी उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की. जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x + 1. वी आर गिवन विद द वैल्यू x इज इक्वल्स टू -1/3. So what we're gonna do is we are going to substitute this value of x in the given polynomial px. We'll write here x as -1/3. So we will substitute the further values. 3 + 1 -1 + 1. What will be the answer? The answer will be 0. As you can see that the answer is 0, that means this polynomial having this root means x is equals to -1/3 is the root of given polynomial, right? So let's check the next one. What is the second question? Second question is px is equals to 5x minus pi. X is equals to 4/5. X is equals to 4/5. So our question px, x की वैल्यू हमने कितनी पुट करनी है 4/5. पाई की वैल्यू, पाई तो कांस्टेंट होता है, हमें पता ही है पाई की वैल्यू कितनी होती है. तो वी विल बी सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू x एज 4/5. सो 5x माइनस x की जगह पे हमने क्या पुट करना है, वी विल बी substituting the value of x as 4/5 here, right? 4/5 minus pi, right? So we can cut the value 5 4 minus pi. पाई की वैल्यू 3.14 के करीब होती है, तो 4 minus pi is not equals to 0. So the answer is 4/5 is not the root of 4/5 is not the root of given polynomial. Right? Let's see the third question. What is the third question? So our third question is px is equals to x² minus 1. x is equals to 1 और -1. ये दो हमारे पास x की वैल्यूज़ हैं, ये दो रूट्स हो सकती हैं हमारी. हम दोनों पुट करके देखेंगे. पहले हम पुट करेंगे p as 1 1² -1. दैट मीन्स 1 - 1 is equals to 0. Similarly, we will check it for -1. -1 का square -1. As you know that the square of the negative terms is always positive. So answer is 1. 1 - 1 is equals to 0 again. So -1 and 1 both are the roots of the given polynomial. Are the roots of given polynomial. So let's see our fourth question. What is the fourth question? Fourth question, px is equals to x + 1 x - 2. रूट x is equals to -1 और 2. पहले हम पुट करेंगे p की वैल्यू -1 + 1
-1 -2, -1 + 1 0, 0 × -3, तो आंसर इज ऑलवेज 0। मल्टीप्लाई करो किसी भी टर्म को 0 के साथ तो आंसर हमेशा 0 आता है, तो p of -1 इज 0 अगेन। तो यस, इट इज द रूट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। नेक्स्ट इज p of 2। p of 2 क्या है हमारे पास? x + 1 x - 2, x + 1, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास? अब हमने पुट करनी है 2 + 1 इज 3, 2 - 2 इज 0, 3 × 0 इज इक्वल्स टू 0, राइट? This is the root of the given polynomial again. Next हमारे पास है next question. Now we'll have the next question. Question number कौन सा करा हमने? 4th। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5th। यहाँ पर लिख दो p of 2 is equals to 0। तो yes, 2 is the root of given polynomial, right? तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। Verify whether the following are the zeros of the polynomial. Again, px is equals to x square, where x is equals to 0। तो हमने 0 का स्क्वायर करा तो आंसर क्या आएगा? 0। p of 0 is equals to 0, thus yes, it is the root of the given polynomial। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। p of x is equals to lx plus m, right? Where x is equals to -m/l। l की वैल्यू हमने क्या पुट करती? -m/l प्लस m। l के साथ l कट हो गया, -m + m कट हो गया, कितना आ गया आंसर? 0। कितना आ गया? 0। तो yes, it is the root of it। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7th क्वेश्चन। px is equals to 3x² - 1, where x is equals to -1/√3 और 2/√3, राइट? तो अब हम पुट करेंगे p की वैल्यू -1/√3, 3 - 1/√3 की स्क्वायर -1। तो ये कितना आ गया हमारे पास? अब हम √3 की स्क्वायर, हमने पिछले चैप्टर में करा था √3 की स्क्वायर के साथ रूट कट हो गया, तो आंसर कितना आएगा हमारे पास? 3। तो जब हमने इसका स्क्वायर करा, नेगेटिव टर्म का स्क्वायर करो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो हमारे पास इसमें कितना आ गया? 1/3। रूट तोड़ोगे आप, √3 × √3 किसके इक्वल आएगा? 3 के इक्वल। किसके इक्वल आएगा? 3 के इक्वल। -1, 3 के साथ 3 कट हो गया, तो अब हमारे पास जो आंसर बचा वो कितना होगा? 1 - 1 इज इक्वल्स टू 0। तो -1/√3 is the root of given polynomial। Similarly, we have to check for the next। Next क्या है हमारे पास? p is equals to 2/√3 for the polynomial 3x² - 1। तो अब हमारे पास क्या है? 3 2√3 की स्क्वायर -1, 3 2 × 2 over √3 × √3 वी कैन राइट इट एज दिस। तो ये हमारे पास हो गया 3, 2 2 ज़ा 4, √3 अगेन क्या हो गया हमारे पास? 3, 4 - 1 हमारे पास आंसर कितना आ गया? 3। तो दिस इज इक्वल्स टू 3 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, दस दिस इज नॉट द रूट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। दस दिस इज नॉट द, दिस इज मतलब दिस मीन्स कौन सी? 2/√3। 2/√3 is not the polynomial, is not the root of the given polynomial। Right?
अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन px, क्वेश्चन नंबर 8th, px is equals to 2x plus 1 where x is equals to 1 by 2, 2 की वैल्यू 1 by 2 plus 1, so 1 plus 1 is equals to 2 which is not equals to 0. No, it's not a root, right? अगर आंसर 2 आ गया, 0 नहीं आया, इसका मतलब क्या है हमारे पास कि हमारे पास जो वैल्यू रूट की दे रखी थी x की 1 by 2, इट इज़ नॉट द रूट ऑफ 2x plus 1, राइट? तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। हम किसी भी पॉलिनॉमियल की रूट कैसे चेक कर सकते हैं? हम उसकी वैल्यू को x की जगह पर सब्स्टिट्यूट करेंगे और ये चेक करेंगे कि क्या उसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद आंसर जो है वो 0 आ रहा है। अगर आंसर 0 आ रहा है तो दैट इज़ द रूट ऑफ इट। अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 4, सी फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। अब हमारे पास जितने भी गिवन पॉलिनॉमियल्स हैं उसकी हमने वैल्यू निकालनी है। p ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 5, राइट? तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे? हम इस गिवन क्वेश्चन को किसके इक्वेट करेंगे? 0 के इक्वल करेंगे और उसमें से x की वैल्यू निकालेंगे। जब हम उसको पुट करेंगे तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा। x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, गिवन पॉलिनॉमियल ये है, इसको 0 के इक्वेट कर लो। अब इसमें से निकालो x की वैल्यू। x कितना आ गया हमारे पास? इधर प्लस था, उधर जाके क्या हो जाएगा? -5। तो रूट क्या होगी इस पॉलिनॉमियल की? -5। क्या होगी? -5। This was the question number 1st. Now we are going to start with the next question. Question number 2nd. So this is px is equals to x minus 5. x minus 5 is equals to 0 and x is equals to 5. x किसके इक्वल है हमारे पास? 5 के इक्वल है। तो रूट आ गई हमारे पास 5। Similarly for the third question, px is equals to 2x plus 5 and the value of x is equals to -5 by 2, -5 by 2. Question number 4th, px is equals to 3x minus 2। अब हम इसको क्या करेंगे? 0 के इक्वेट करेंगे। 3x minus 2 इज इक्वल्स टू 0। इधर 2 माइनस का, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का। इधर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो x की रूट क्या आ गई हमारे पास? 2/3, राइट? सो दीज आर द रूट्स ऑफ द गिवन पॉलिनॉमियल। दिस इज द सिनेरियो टू कैलकुलेट द रूट्स फॉर द गिवन पॉलिनॉमियल। जो भी पॉलिनॉमियल आपको गिवन है उसको 0 के इक्वल करो और उसमें से अपनी x की वैल्यू को कैलकुलेट कर लो, राइट? थैंक यू।